হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ দ্বিতীয় দিনে এখন ঘড়িতে বাজে 11:20। পৌঁছে গেছি রাজগীর। রাজগীরে আমরা এখন আছি, এই যে দেখছেন হোটেল সারদা, ওখানেই আমরা উঠেছি। আর আমরা একটু পরে কাছাকাছি সাইট সিন যা আছে দেখতে বেরোবো। আমাদের এই কথা হয়ে গেছে, টাঙ্গা ভদ্রলোক উনি নিয়ে যাবেন। টোটাল 5 জনে 1200 টাকা, আমাদের 4 ঘন্টা মতো লাগবে। পরপর দেখবো কি কি উনি দেখান, কোথায় কোথায় ঘুরতে যাই। অনেকগুলো ডেস্টিনেশন প্লেস আছে, আমরা অলরেডি জেনেছি। একটা লিস্ট উনি বলেছেন, রোপওয়ে, রত্নগিরি পর্বত, মণিয়ার মঠ, স্বর্ণ ভাণ্ডার বা জরাসন্ধের আগ্রা, বিম্বিসার বন্দিশালা, বেড়ায়তান মিউজিয়াম, জু সাফারি, রথের চাকার দাগ, জয়প্রকাশ নারায়ণ উদ্যান, গন্ধকুট পর্বত, ডিয়ার পার্ক ও ঘোড়া কাটোরা ড্যাম। এরপর এখান থেকে বিকালে আমরা যাব কাছাকাছি লোকাল সায়েন্সে, অনেক কিছুই আছে। এখন কিছুক্ষণ পরে আমরা বেরোবো, সব রেডি হচ্ছি, এক একটা প্লেস যাব, এক একটা করে আপনাদের সাথে। শুরু করছি আজকে সাইট সিন। সাইট সিনে প্রথমে যাব কাছাকাছি যে ভিউইং প্লেসগুলো আছে। আমাদের টাঙ্গাওয়ালা আসছে, টাঙ্গাওয়ালাতে আমরা টাঙ্গা চেপে সবাই মিলে এই রৌদ্রের মধ্যে ঘুরতে বেরোবো। যদিও ঘোড়াটা একটু দেখা, এই আমাদের টাঙ্গাওয়ালা এসে গেছে, দেখুন টাঙ্গাতে আমরা চড়ে এবার যাবো। গেছি টাঙ্গাতে, ঘড়ি, হ্যাঁ ঘড়ি মাথা। এখন বাজে 12:30। বেরিয়েছি টাঙ্গায় করে সবাই মিলে ঘুরতে রাজগীর থেকে। দর্শনীয় স্থান, সামনে লেখা আছে রাজগীর। আমরা একটা টাঙ্গা নিয়েছি। এখন রোদের টেম্পারেচারও ভালোই আছে, প্রায় 40। চারিদিকে শুধু পাহাড়, গাড়ি, গাছ, দূরে একটা লাল পলাশ ফুলের গাছ দেখছি। हम लोग पहले कौन सा जा रहा है? अभी पहले जा रहे हैं सोन भांडार। ओ सोन भांडार, अच्छा अच्छा। जरासंध का अगड़ा को उधर से, हाँ इसका बाद हम लोग टोटो जाके देखेंगे। पहले जा रहा है আমরা প্রথমে যাচ্ছি সোনার ভান্ডার, ওখান থেকে যাব জরাসন্ধের আগ্রা। মহাভারতে বিখ্যাত নাম জরাসন্ধ। ब्रह्मकुंड का रास्ता इधर ही है, बाद में आएंगे। हम लोग स्वर्ण भवन जा रहा है। हाँ क्या मनसा मंदिर बोलता है। अच्छा अच्छा, मयार मठ। हाँ, इसका बोलता है मयार मठ।
ये पहले था नहीं कि बन रहा है? पहले था, लेकिन बन रहा है अभी देखिए। अच्छा अच्छा, नया नया बन रहा है। जैसे जैसे नक्शा बन रहा है ना, हाँ। जैसे जैसे नक्शा बना रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। চারিদিকে শুধু ছোট ছোট গাছ আর গাছ, আর সামনে পাহাড়। अरे ढालू है ना, इसलिए थोड़ा स्लोली जा रहा है। ढाल बोले तो आस्ते आस्ते गए। वो हाँ हाल के चलते टांगा नहीं जाता, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, समझे? स्वर्णगिरी हिल। ऑटो से जाता है। हाँ हाँ, ये मिगो बिहार, ये मिगो बिहार आया। हाँ वही तो, इधर इधर मिगो बिहार। यही स्वर्ण भंडार। भंडार गुफा। হ্যাঁ, इसके अंदर हम घूम के आएंगे। হ্যালো বন্ধুরা, এখন এসে গেছি আমরা মহারাজ জরাসন্ধের আখড়া, যেখানে মহাভারতের সময় কথিত আছে যে ভীম আর জরাসন্ধ মানে ওদের যুদ্ধ হয়েছিল, সেই স্থানে এসে গেছি। ঢুকছি সেই স্থান, পিছন থেকে দেখাই। এই স্থান, এই গেট দিয়ে আমরা ঢুকলাম। এখানেও আমি লেখা আছে, আমি যে ফটোটা ওঠাচ্ছি আপনাদেরকে দেখাই। আমরা এখন এগিয়ে চলছি জরাসন্ধের আখড়া। চলো, জরাসন্ধের আখড়া। এটা আগে অনেক আগে ছিল, আরও খারাপ অবস্থা। এখন এটা রিপেয়ারিং হচ্ছে মানুষকে দেখার জন্য, বহু আগে। এই সেই জায়গা, মহাভারত কা সময়ের সেই স্মৃতি বিজড়িত জরাসন্ধের আখড়া। চারিদিকে পাহাড়, দূরে দূরে দেখছেন চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই এরিয়া। এক সময় ছিল মগধ রাজ্য, মগধের সম্রাট হয়েছিলেন জরাসন্ধ। তারই আখড়া, এখানে তারা মল্লযুদ্ধ করতো। আমরা এটা দেখার জন্য আজ এসেছি রাজগীর থেকে। চলো নিচের দিকে দেখাই। ওই দূরে দেখা পাচ্ছেন টোটো। আমরা এখানে এসেছি, চারিদিকে শুধু পাহাড়, পাহাড়ের মাঝে ঘেরা কিছু কাঁটা গাছ, ঝোপঝাড় ভগ্ন দশা হয়ে আছে। একসময় এখানে কত উজ্জ্বল্য ছিল। তার চারিদিকটা একবার আপনাদেরকে ঘুরে দেখাই, উপর থেকে দেখালাম। দূরে একটা কিছু, এখানে মিলিটারি ক্যাম্প সম্ভবত কিছু একটা রয়েছে। আর মিলিটারি ক্যাম্প রয়েছে। এখন এসে গেছি সম্রাট জরাসন্ধের সোনার ভান্ডার,
কথিত আছে এখানে অনেক খাজানা আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই খাজানাকেও উদ্ধার করতে পারেনি। কারণ ওখানে জরাসন্ধ কিছু লিখে গেছেন, সেই লেখা যে পড়ে উদ্ধার করতে পারবে তখনই নাকি এটা জরাসন্ধের খাজানা অর্থাৎ সোনার ভাণ্ডারটা খুলে যাবে, কথিত কথা। যাই হোক, তার চেয়ে বড় জিনিস আমরা আজকে দেখতে এসেছি রাজগীরের কাছেই সম্রাট জরাসন্ধের এই সোনার ভাণ্ডার। চলুন দেখা যাক, ভিতরে আমরা খাজানা ঘরে ঢুকি। চারিদিকে দেখতে অসাধারণ, পাথরের গুহা, পুরো পাথর দিয়ে বন্ধ, পাহাড়ের মতো লাগছে, পাহাড়ের মধ্যে করা গুপ্ত দরজা। অনেকেই এসেছেন, আজকে আমরাও আসছি। এই হলো দরজা, পুরো পাথর পাহাড় কেটে বানানো। इसके अंदर अच्छा बताइए। एक सेकेंड, हाँ चलिए, हाँ इधर आओ, इधर आओ। अंकल क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। आप लोग हिंदी समझते हैं? हाँ बिल्कुल, तो आप सबों को मेरा नमस्कार। आपका भी। यहाँ पर देखिए बाबू, एक दरवाजे का फिगर ऐसा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये दरवाजा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है, अच्छा और ऐसा है कि हाथ चला रहा है कि दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है। अच्छा। सुरंग, अच्छा। सोन मीन सुरंग होता है। सोन मीन सुरंग। सुरंग SONE। हाँ। उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ, तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और इसी गुफा के भीतर इतिहास में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई, और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म, मतलब त्रिपिटक। तो उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। 2600 पूर्व। अब इतिहास में ऐसा वर्णन है कि राजा बिंबिसार का गुप्त धन खजाना छिपा हुआ है। ये दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर और तड़पा कर मरवा डाला। ये कारागार झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए। ये भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य थे। धन का आवश्यकता था नहीं, वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद किए और एक मंत्र लिख दिए। बताऊंगा, केवल लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन सर, यह हकीकत जहाँ तक सच है, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। बाद में भारत का प्रथम वैज्ञानिक कलकत्ते का निवासी जगदीश चंद्र बसु जैसी बॉस हॉट स्प्रिंग को टेस्ट किए, ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट किए, तो वो ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि इस पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है और ये विस्फोटक पदार्थ है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। अब बात रही कि हकीकत कहाँ तक सच है कि अभी भी खजाना है अथवा नहीं है, ये किसने देखा? हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। लेकिन आज हमारे क्या फॉरनर्स वगैरह जो आ रहे हैं बाबू, वो तो गर्म जल और इन प्राचीन स्थलों की वजह से आ रहे हैं। तो फॉरनर से भारत सरकार को एक तोहफा मिल रही है, वो आपका डॉलर है, जिसके बदौलत विदेशों से आपका संपर्क चल रहा है, ये बंद हो जाएगी। इसलिए 1904 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून पारित कर दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट नहीं कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। तो इसका लिपि देखा जाए, ये भाषा है,
तो इसी लिपि के बारे में आज इतिहास चला रहा है कि वो दरवाज़ा खोलने का मेथड है, चाबी है, तो लिपि किसी ने पढ़ा गए। आर्कोलॉजिकल सर्वे पूजा वालों का कहना है कि शंख लिपि है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि शंख आकार का मिल रहा है। तो प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी, लेकिन जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए। थी रत्नदरी, रत्नरंजन और रत्नसागर, ये तो जल गए। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक कोई पढ़ाई हुआ है। लेकिन जब यहाँ से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई पटना और कालांतर में गुफाएं खाली पड़ गई, तो 1772 मतलब गुप्ता पीरियड में जैन मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का वर्क स्टार्ट किए और वो यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। तो देखिए माथे का चिन्ह, ये पूरी बॉडी का निशान, धर्मचक्र और सिंह का चिन्ह, भगवान महाविष्णु का प्रतिमा है। नीचे में 1.5 फीट गड्ढा हुआ, इस गड्ढे में पार्श्वनाथ और ऊपर में आदिनाथ का मूर्ति था कीमती पत्थर का। तो इसे निकाल कर भारत सरकार ने नालंदा म्यूजियम में रखा। बगल वाली गुफा में चला जाए। ये तो जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। एशिया महादेश में मुख्य 3 यूनिवर्सिटी का नाम आता है। प्रथम तो हुआ तक्षशिला जो अफगानिस्तान में चला गया, जिसका राजधानी आपका बेलूचिस्तान हुआ। द्वितीय नालंदा और तृतीय विक्रमशिला जो भागलपुर में है सर। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, पाग्यान और हुएनसांग। हुएनसांग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई जो है 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल साहब ने करवाए, तो 2 गुफाएं मिली। अब उसमें पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला और ये मंदिर 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो जैन मंदिर मिलने का वजह है कि जब यहाँ तो राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई, गुफाएं खाली पड़ गई, तो गुप्ता पीरियड में जैन मुनि भैरव देव यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। तो गुप्ता पीरियड में जैन धर्म में 2 भाग हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। अब यहाँ के पत्थरों पर देखा जाए 2 संप्रदायों की जैन प्रतिमा है। अब जैसे हाकिम यहाँ पर कमल फूल का चिन्ह है, लेकिन बिना वस्त्र का प्रतिमा है, अर्थात दिगंबर। 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह श्वेतांबर। दूसरा तीर्थंकर जीतता स्वामी और सिंह का 2 मूर्ति श्वेतांबर। 24वां तीर्थंकर भगवान महाविष्णु। मुस्लिम प्लेट में बख्तियार खिलजी ने दस्त किया। तो बुद्ध और भगवान महाविष्णु ये तो बिल्कुल समकालीन थे, पोर्शन दोनों का सेम है। दोनों में मात्र 32 साल का डिफरेंस है। भगवान महाविष्णु 32 साल बड़े थे। भगवान बुद्ध 5 वर्ष राजगिरी बेनु वन में बिताए और भगवान महाविष्णु 11 वर्ष पर्वतों को वन में बिताए सर। 3 वर्ष वो नालंदा में बिताए थे, लेकिन इतिहास में कहीं दोनों का एक जगह मिलन नहीं दिखलाया गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ, बोधि वृक्ष के नीचे में, लेकिन भगवान महाविष्णु की ज्ञान प्राप्ति रिजुवालिका नदी के तट पर कलबरी के नीचे में, वो गिरिडीह झारखंड में पड़ता हुआ वो जिसे पार्श्वनाथ कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कलबरी का चित्रण है, स्पष्टतः भगवान महाविष्णु का प्रतिमा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि राजा बिंबिसार के समय में प्राचीन महल कहाँ रहा होगा। तो ये मगध का प्राचीन नाम होगा गिरि ब्रज। ये गिरि का अर्थ पहाड़, ब्रज का अर्थ वासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं। 1 नंबर का नाम आता है विपुल गिरी, 2 नंबर रत्नागिरी, इसे गिरकोट पहाड़ भी कहते हैं। दैट वाज द मेडिटेशन सेंटर ऑफ लॉर्ड बुद्धा। 3 नंबर उदयगिरी, 4 नंबर सोनागिरी और ये 5 नंबर व्यवहारगिरी हुआ सर। तो इसी 5 पहाड़ के भीतर अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा, लेकिन हमेशा प्राकृतिक आपदा भूकंप बता रहा। महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस स्टैंड के पास बसा हुआ है। हाँ, माय नेम इज रामजी उपाध्याय। आई एम ट्रेन्ड बाय द टूरिस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑन द बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयड। What I do not get any salary by the government. Totally I depend upon the tourists. ये আছে মরিয়াম মাঠ। ये जयप्रकाश उद्यान पार्क is destination place of नया राजगीर। এটা আছে রাজা বিম্বিসারের জেল। ভিতরে আর গেলাম না, কারণ ভিতরে যাওয়ার মতো এই গরমে আর পজিশন নেই, আর কিছুই নেই, অবশিষ্ট শুধু একটু ভগ্নস্তূপ।